सभी साथियों से बात करने का मौका मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। We pride ourselves in being a democratic republic. We know that our constitution guarantees us equality, it guarantees us a secular society, and we understand that we have certain fundamental rights that we enjoy, which are guaranteed to us under the Constitution. And yet, we are all very, very deeply aware. The other is everywhere we see, we are noticing how there is politics of hate, there is politics of divisiveness. Now, when our Constitution guarantees us all of these freedoms, guarantees us equality, guarantees us secularism, how is this happening? This is clearly happening because one of the main things that our democracy promises us, which is the right to question and the right to hold the government accountable, is being crushed systematically. A democracy, what sets a democracy apart from any other form of government is the fact that citizens can question, is the fact that at every point we can hold our governments accountable. And that is the one thing that today we see the sharpest attack on. लोकतंत्र में हमारे सवाल करने के अधिकार पर, जवाबदेह बनाने के अधिकार पर अपनी सरकार को, जो हमारा अधिकार है उसके ऊपर आज सबसे बड़ा प्रहार है. And we see this attack take at least 3 forms. The first is anyone who dares to question, there is an attack on those people. So people who dissent, people who question, people who try to hold the state accountable when it forms policies and laws which are not in public interest but are in the interest of a few, those people are being systematically targeted. There are draconian laws like UAPA, PMLA, NSA, which are being systematically deployed against these people, against these voices, wherever they might be. Shoma Sen has finally walked free, and I think it is a shame that someone like her had to spend such a long time in prison when finally what was found was that there was not a shred of evidence of what was claimed to be her offense against her. The UAPA, the PMLA, these are laws which have such draconian provisions where the process is the punishment, and these are the laws that are being used against people who dare to show truth to power. We are seeing how labeling is done. Very regularly, people who speak against the anti-constitutional laws like the CAA, people who speak for the environment, people who speak for the marginalized, they are labeled anti-national. It's become normal, common parlance, ye anti-national hai. This is how people who are speaking out, are questioning, are being crushed. Their voices are being crushed. The second thing which is being done very clearly is that laws that are meant to empower us, which flow from our constitution, which help us to question the government and hold it accountable, are being systematically destroyed. आप ये देखिए कि पिछले 4 साल में सूचना का अधिकार कानून, जिसने लोगों को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनसे सवाल पूछने का अधिकार दिया, उसे 2 बार तोड़ा मरोड़ा गया है. Twice the law has been amended, and both the amendments have been very, very regressive. So if you look at one amendment which came
It basically says that the information commissioners, their salaries and their karyakal, their tenure will now be decided by the central government. What does that mean? If I don't get information under the RTI law, where do I go? I go to the Information Commission. And if the Information Commissioner is not independent, who will give me information? And to curb their independence, their autonomy, basically this amendment has been got so that there is a sword hanging on their heads, that if you give information that is inconvenient to the government, then your pensions could be finished, your salary tenure is in our control. The second amendment that was brought was even more dangerous. It basically says that all personal information will be exempt from disclosure under the RTI Act. What does that mean? पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है? आपका नाम, मेरा नाम, पता, ये सब कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब ये कहा जा रहा है कि सूचना के अधिकार में लोगों को कोई अधिकार नहीं है ये जानने का किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब हमारा पैसा बैंकों से कुछ पूंजीपति लूट कर ले जाते हैं और फरार हो जाते हैं, उनके लोन राइट ऑफ हो जाते हैं, पैसा तो हमारा है, तो क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है कि उनके क्या नाम है? वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या जानने का हमारा अधिकार नहीं है? जब कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट गिर जाते हैं, जैसे सिलक्यारा में हमने देखा, क्या हमारा जानने का अधिकार नहीं है ये कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, क्या नाम था? क्या हमारा जानने का अधिकार नहीं है कि कौन अधिकारी थे, उनका नाम क्या था, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार कराया? ये दूसरा अमेंडमेंट आया है सूचना के अधिकार कानून में कि अब हम निजी सूचना नहीं ले सकते। हम ये जानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कैसे होता है। जब राशन की दुकान पर जाते हैं लोग, उन्हें कहा जाता है आपका नाम तो है ही नहीं राशन की लिस्ट में, तो वो जाकर राशन की लिस्ट निकलवाते हैं बेनिफिशियरीज की, तभी मालूम पड़ता है, तभी संघर्ष आगे बढ़ पाता है कि किस किस को राशन मिलना था। अब अगर वो लिस्ट नहीं देंगे, पेंशन जिसको मिलनी है उसकी लिस्ट नहीं देंगे, तो लोग संघर्ष कैसे करेंगे, जवाबदेही कैसे मांगेंगे सरकार से? सो व्हाट वी आर सीइंग इज that through these amendments to the RTI law, what the state has done is essentially made sure that it is impossible for people, or they're making it more and more difficult for people to demand accountability from the state, from those who are sitting in power. The other thing which has been done with the RTI Act is that increasingly we are seeing today that schemes and policies are being brought which the government from the beginning says it's not even covered under the RTI Act. तो सूचना के अधिकार कानून को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार आज अपनाया जा रहा है वो ये है कि सरकार पूरी तरह से ठोक के बोलती है कि हम तो ऐसा स्कीम लाएंगे, ऐसी नीति बनाएंगे जो सूचना के अधिकार में आप उसकी सूचना मांग ही नहीं सकते। उसमें से आज का जो विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एक बड़ा ज्वलंत एक उसका एग्जाम्पल है। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे लाई? सबसे पहले 4 कानूनों को संशोधित किया गया, कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईटी एक्ट, चारों को अमेंड किया गया। उसमें लिखा गया कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और जिस भी पार्टी को देगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, किसी को सूचना नहीं मिलेगी कि किसने खरीदा, किस पार्टी को देने के लिए, और किस पार्टी ने उस बॉन्ड को लिया किधर से। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई 2018 में, जिसमें सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से एक तरह से फ्लड गेट्स को खोल रहे हैं फॉर अनलिमिटेड अनोनिमस फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ों रुपए का चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो किसी को अधिकार नहीं है ये जानने का कि किसने किसको पैसे दिए। ना केवल लोगों को अधिकार नहीं है, इसमें तो एक कदम और बढ़ गई सरकार।
उन्होंने कहा रेगुलेटर्स को भी अधिकार नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अधिकार नहीं है ये जानने का कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किस पार्टी को दिए। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम आई तो आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये आप क्या ला रहे हैं, ये आप मत लाइए, क्योंकि इससे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम क्या काम करेंगे, फिर कोई भी पैसे देता रहेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। सूचना के अधिकार कानून में जब हमने सूचनाएं थोड़ी निकाली कि डिलिब्रेशंस क्या हुई थी, तो ये मालूम पड़ा कि ईसीआई ने चिट्ठी लिखी सरकार को ये कहने के लिए कि ये मत लाइए आप इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि इसके बाद हमारे जो रेगुलेशन का काम है हम कैसे करेंगे। आरबीआई ने चिट्ठी लिखी ये कहकर कि आप जो ये स्कीम लेके आ रहे हैं इससे तो काला धन खूब बढ़ेगा देश में, और मनी लॉन्ड्रिंग, जो काला धन सफेद होता है वो भी बढ़ेगा। और ये लिखित में भेजा गया। उस समय पे उर्जित पटेल थे गवर्नर आरबीआई के, उन्होंने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी में लिखा कि आप ये स्कीम मत लाइए, इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगी। उसके बावजूद सरकार ये स्कीम लेकर आई। और इस स्कीम में क्या हुआ, सीधा सी बात कि आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक करेंसी जैसा है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए का आप खरीद सकते हैं और किसी भी पार्टी को गोपनीय तरीके से ये दे सकते हैं। अब इसमें क्या मतलब है इसका? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में जो करप्शन की है, जो अब्यूज ऑफ पावर की है, वो यही है कि जब पार्टियां पैसा लेती हैं, चंदा लेती हैं, वो पर्दे के पीछे लेती थी और किसी को मालूम नहीं होता था कि पार्टी किससे चंदा ले रही है और किसके लिए काम कर रही है। तो हम सब ने देखा कि लेबर लॉज आए हमारे देश में, जहां जो लोग कामकाजी लोग हैं, जो लेबर है असली, वो कह रहे हैं ये लॉज तो हमारे लिए है ही नहीं, ये किसके लिए बना रहे हैं आप लॉज। फार्म लॉज आए, फार्मर कह रहे हैं ये लॉज तो हमारे लिए है ही नहीं, वो सरहदों पे जाके उनको बिठाया जा रहा है, दिल्ली की सरहद बन गई खैर, और वो कह रहे हैं हमारे लिए तो बना ही नहीं है ये कानून। किसके लिए बना है कानून? ये कानून बनते हैं उन लोगों के लिए जो रूलिंग पार्टीज को चंदा देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टियों को चंदा देती हैं कि जब आप सरकार बनाएंगे आप जनहित में काम मत करिएगा, आप हमारे हित में काम करिएगा। हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप हमारे लिए नीति बनाइए, हमारे लिए कानून बनाइए, हमारे लिए ठेका दीजिए, चाहे हम सही बंदे हैं कि नहीं ठेका लेने लायक ठेकेदार। और यही इलेक्टोरल बॉन्ड ने लीगलाइज कर दिया। जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते थे, हम कहते थे कि ये तो काले धन से, कैश से पैसा आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इसी चीज को लीगलाइज किया, उसको एक कानूनी जामा पहना दिया कि कोई बात नहीं, अब आप लाखों करोड़ों रुपए लीजिए चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से, किसी को नहीं पता चलेगा कि किस कंपनी ने दिए और आप किसके लिए काम कर रहे हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का सार था। और सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा केस लड़ा गया, उसके बाद जो जजमेंट आया है, मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सूचना के अधिकार को बचाने के लिए ये जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये लोगों के, ये वोटर के जानने के अधिकार को खत्म करती है। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, वो कहता है कि हमें बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं बोलूंगी कैसे आज़ादी से और अपनी अभिव्यक्ति कैसे करूंगी आज़ादी से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गैर संविधानिक बताया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कि ये अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया अपनी जजमेंट में, अगर आप जजमेंट को पढ़ें, कि ये स्कीम तो केवल क्विड प्रो को के लिए है, पोटेंशियली, कि क्लाइंटलिज्म,
शब्द यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये तो क्लाइंट हो गए पॉलिटिकल पार्टी के, कि पैसे दिए, चंदा दिया और धंधा लिया। पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में बैठी है, आप उसको पैसे दीजिए और अपना धंधा चलाइए आगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन किया, बल्कि ये भी कहा कि ये गोपनीयता हटाइए। रेट्रोस्पेक्टिवली ये कहा कि 12 अप्रैल 2019 से जिसने बॉन्ड खरीदा और जिसको दिया, ये सारी सूचना लोगों को दे दीजिए। अब जब ये सूचना सामने आ गई है, सब स्पष्ट है। अगर हम इस सूचना को देखें, जो कि काफी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने देखा है पिछले 2 महीने में, साफ नजर आ रहा है किस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा था। ट्रेंड्स जो हैं वो इतने क्लियर हैं। एक तरफ एक कंपनी है, बड़ी कंपनी, जो कि बॉन्ड देती है भारतीय जनता पार्टी को, और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, मेघा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंपनी जो है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को 140 करोड़ रुपए देती है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से, और 14,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पाती है। ये क्या है? इफ दिस इज नॉट किकबैक्स, इफ दिस इज नॉट करप्शन, व्हाट इज? उसी तरह से अगर आप देखें तो भारती टेलीकॉम्स जो है वो 150 करोड़ रुपए देते हैं। प्रशांत बैठे हैं, 2G स्कैम में प्रशांत ने ही विक्ट्री बड़ी एक हासिल करी थी हम लोगों के लिए, जो कि जिसमें ये कहा गया था कि कभी स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं होना चाहिए, उसका हमेशा वो होना चाहिए, ऑक्शनिंग होनी चाहिए, नीलामी होनी चाहिए। अब बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए लिए भारती टेलीकॉम से और ये कह दिया कि नहीं, अब हम नीलामी नहीं करेंगे, अब हम एलोकेशन करेंगे। 142 एमपीज जब सस्पेंडेड थे तो नया टेलीकॉम बिल लाया गया है पार्लियामेंट में। हम ये सारा कुछ जो होते हुए देख रहे हैं, किस तरह से लोकतंत्र में जुड़ा हुआ है, किस तरह से जब हम एक तरफ देखते हैं कि सारे एमपीज को बाहर निकाला जा रहा है एक एक करके, और दूसरी तरफ जब ये सब खुलासे होते हैं तो हाउ वी आर एबल टू जॉइन द डॉट्स, क्योंकि सूचना आ रही है। और इसीलिए सरकारें नहीं, ये सरकार नहीं चाह रही कि सूचना बाहर आए, क्योंकि लोगों ने अगर ये सारे बिंदु जोड़ लिए तो जो वास्तविक सच है वो बाहर आ जाएगा। कितना भी आप बोलिए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया भारत, कितना भी आप बोलिए कि एक भी भ्रष्टाचार नहीं है, टुडे in the mother of democracy, the mother of scams has come out. And what we are seeing systematically in the data is absolutely shocking. Pharma companies हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, उनकी जो ड्रग्स हैं वो सबस्टैंडर्ड ड्रग्स हैं और उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। फिर वही ड्रग्स हम और आप और हमारे बच्चे खा रहे हैं। जाइडस का केस है जिसके अंदर जाइडस कंपनी में ये कहा गया कि उनकी जो ड्रग है वो सबस्टैंडर्ड है, और गुजरात में बिहार के जो रेगुलेटर हैं उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात में उनकी फैक्ट्रीज हैं तो गुजरात सरकार को, रेगुलेटर को उनके ऊपर एक्शन लेना था। बीजेपी को पैसे दिए जाते हैं, कोई एक्शन, रेगुलेटरी एक्शन नहीं होता और वो दवाइयां बिकती रहती हैं। क्या हमारी जिंदगियों पे इस भ्रष्टाचार का असर हो रहा है, इस स्कैम का असर हो रहा है, हमारे लोकतंत्र पे क्या असर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ये डेटा देखकर। ये डेटा दिखा रहा है कि किस तरीके से जो आरबीआई कहता रहा, चिल्लाता रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी, काला धन जनरेट होगा, हो रहा है। 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो घाटे में चल रही थी, 33 कंपनियां घाटे में चल रही थी। कितना घाटा? छोटा मोटा घाटा नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा है उन कंपनियों का। और वो कंपनियां, 33 कंपनियां
इलेक्टोरल बॉन्ड देती हैं भारतीय जनता पार्टी को। कहां से आ रहा है उनके पास पैसा? सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनियां फ्रंट थी? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी इन कंपनियों के थ्रू? ये समझ में आ रहा है इस डेटा को देखकर कि इतने तरीके के गंभीर सवाल है। एक्सटॉर्शन, वसूली। आप ये देखिए कि हमारे देश में आज 2 मुख्यमंत्री हैं जो जेल में पड़े हैं। मतलब इट इज अनप्रेसिडेंटेड। मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होगा। हम चुनाव में जा रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री हमारे देश के, 1 सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज इन जेल टुडे। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया है, इसमें क्या पता चलता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवर हैं दिल्ली एक्साइज स्कैम में, उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। कैसे दिए? उन्हें अरेस्ट किया गया 22 नवंबर 2022 को। 5 दिन के अंदर उन्होंने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड उनकी कंपनी ने खरीदे, औरोबिंदो फार्मा ने, और बीजेपी को दे दिए। शरद चंद्र रेड्डी जो कि अक्यूज्ड थे, उन्हें मई 2023 में बेल दे दी गई। बेल दी वो एक चीज है, किस ग्राउंड पे दी? मेडिकल ग्राउंड्स। उनकी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था। हमने देखा है स्टैन स्वामी कैसे ही डाइड इन प्रिजन, लेकिन ईडी ने इनकी कमर दर्द में इनकी बेल अपोज नहीं करी और शरद चंद्र रेड्डी को बेल मिली, वो अप्रूवर बने, उन्हें पार्डन मिला और फिर उनकी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के बीजेपी को दिए। क्या उनकी स्टेटमेंट पर यकीन किया जा सकता है? और क्या उनकी स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में रखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? आज ये सवाल बन रहा है हमारे देश में। आईएफबी एग्रो 40 करोड़ रुपए दिए उन्होंने टीएमसी को, और अपनी जो फाइल है उसमें उन्होंने लिखा, जो अपनी मिनट्स है मीटिंग के, उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे हमने ये पैसे दिए हैं। उनके ऊपर एक्साइज के केस चल रहे थे। तो क्या ये एक्सटॉर्शन का पैसा है? ये बड़ा सवाल बन रहा है। और मुझे लगता है कि जो तीसरी चीज, क्योंकि एक चीज थी जो सवाल पूछे उसी पर आप आक्रमण कर दीजिए, दूसरी चीज जो सवाल पूछने का हक दे उन सभी कानूनों को खत्म कर दीजिए। समय का अभाव है, मैं और भी बहुत सारे कानूनों में की बात नहीं रख पा रही हूं। कौन कौन से कानून जिनके अंदर हमें अधिकार था सरकार को जवाबदेह बनाने का, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, तमाम कानून हैं जिन्हें तोड़ा गया है, जिससे कि हम सवाल ना पूछ सकें, हम जवाबदेही ना मांग सकें। और तीसरी चीज, ये सब हमारे संविधान में जो सारे हमारे अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। तो वो जो सारे ढांचे, इंस्टीट्यूशंस जो थे जिनका काम था कि वो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करें, वो कहाँ हैं? Where are those institutions which were supposed to protect our constitutionally guaranteed rights? That, I think, is a very, very important question. Prashant will talk about it, I'm sure, in detail. But क्या देख रहे हैं हम? किस तरीके से आज हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इतना बढ़िया जजमेंट दिया, पर 6 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देने के लिए। 2017-2018 से केसेस डले हुए हैं। क्या जरूरत थी इतना समय लगाने की सुप्रीम कोर्ट को, जब गैर संवैधानिक काम हो रहा था? इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे से पहले 2019 का चुनाव हुआ, सारे स्टेट्स में चुनाव हुए, और अब जबकि सबकी तिजोरियां भर गई हैं इस पैसे से, तब एक और चुनाव हो रहा है अभी हमारे देश में। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा समय लगाया? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से बनता है। क्यों इतने सारे केसेस, चाहे सीएए का हो, चाहे जो सारे लोग जो जेलों में हैं उनका हो, क्यों इतना समय लग रहा है इन केसेस को टेकअप करने में और
उनकी सुनवाई करके डिसीजंस देने में। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है क्या काम कर रहा है जुडिशरी का? जिन इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे भ्रष्टाचार में, ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा में नजर आ रहा है कि वो खुद ही शायद मिले हुए हैं इस पूरी वसूली और धांधली में, क्योंकि ईडी का रेड पड़ता है, सीबीआई का रेड पड़ता है और उसके बाद में कोई या उसके एकदम पहले कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके दे देते हैं और वो मामला ठंडा पड़ जाता है। क्यों हमारी ईडी, सीबीआई जिनका काम है लोगों के हित में इन्वेस्टिगेशन करना, क्यों वो नहीं काम कर रहे? उनके ऊपर जो बिठाए गए हैं, जो हेड पे बिठाए गए हैं लोग, जो डायरेक्टर बनाए गए हैं, उन्हें कैसे बनाया जा रहा है डायरेक्टर आज? क्या केवल उन्हीं लोगों को डायरेक्टर बनाया जा रहा है जो सरकार में, जो सत्ता में पार्टी है, जो उनकी बात सुन ले? क्या ये तकलीफ है? और फाइनली जो सारे इंस्टीट्यूशंस, इंफॉर्मेशन कमीशंस, हम तेलंगाना में हैं, तेलंगाना में इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक भी नहीं है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद 11 में से केवल 3 की नियुक्ति है, जिससे कि कहीं हमें सूचनाएं ना मिल जाएं, क्योंकि सूचना जब मिलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना मिलती है, तो सरकार को लगता है कि नाक में दम हो रहा है। तो जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस आर सपोज्ड टू फंक्शन टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड टू अस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द वे दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, the way they have been systematically attacked and their autonomy has been reduced and almost finished in most cases, is I think what is enabling all of this to happen. कि PM केयर्स में हिम्मत हो रही है सरकार की कि आप चीफ हैं, आप चेयर हैं PM केयर्स के, हमारे प्रधानमंत्री इन हिज एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, 4 जो मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, वो उसके बोर्ड पे बैठे हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम आपको सूचना नहीं देंगे कि कहां से पैसा इकट्ठा किया PM केयर्स में और कहां खर्च कर रहे हैं। ये तभी मुमकिन है जब इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है कि इस तरीके की चीजें ना हो, आप और हम कुछ गैर कानूनी करके देखें और देखिए कैसे तुरंत एक्शन होता है। सरकार कहती है कि PM केयर्स पब्लिक अथॉरिटी है और CSR कंपनीज का जो पैसा होता है उसको ले लेती है, क्योंकि कानून में, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि वो जा सकता है टू अ पब्लिक अथॉरिटी। खूब पैसा जमा किया, 3000 करोड़ तो पहले 3 दिन में जमा कर लिए, और जब सूचना मांगी लोगों ने तो फटाफट रेट्रोस्पेक्टिवली कानून बदल दिया और कहा पब्लिक अथॉरिटी और PM केयर्स सब पैसे ले सकते हैं CSR के। ये सब कैसे हो रहा है? आप और हम करें ऐसा तो चलेगा क्या? क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? जो IT डिपार्टमेंट, ED, CBI, जुडिशरी, जिन सब का काम है उनके द्वारा। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये जो हमारा आज का दौर है, इसमें हम सवाल पूछने से चूक नहीं सकते। चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितना भी हमारे जो संस्थाएं हैं उन्हें तोड़ा मरोड़ा जाए, जो कानून है उन्हें जितना भी तोड़ा मरोड़ा जाए, पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये हमारे जीवन की लड़ाई है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, अगर हम सरकार को जवाबदेह नहीं टिकाएंगे अपने वोट से और अपने सवालों से और अपनी कंप्लेंट से, तो ये लोकतंत्र नहीं बच सकता। और ये जो 5 साल में जाके हम वोट करने की बात करते हैं, उससे उस वोट का कोई मायना नहीं रह जाएगा अगर हमारा सवाल पूछने का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा और हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। जिंदाबाद।